लास्ट हेडिंग क्या थी? वी हैव टू स्टार्ट द मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ के बारे में थोड़ा पढ़ना था। yesterday the last heading which we have discussed that the four steps which have been followed by Mendel. First one was selection of parents. What criteria was decided by Mendel before selecting parents? This everybody is knowing, I think. The selection of parents means क्या है कि if he was doing the experiment for height, at that time height, the parents with having one tall and one dwarf height were selected. If he was doing experiment on the flower color, in that case one plant having purple flower, one plant having white flower was selected. Like that means the seven characters which we have studied, that all characters were done by, that all experiment were done by Mendel. Clear है ये? Second one was hybridization. Everybody is knowing. Intermixing. Third is self-pollination. For this word only, self-pollination. To explain this, we have yesterday we have came to know one word, emasculation, in which we were removing the anther so that there should be no chance of self-pollination or cross-pollination. Different experiments are done. And last is calculation. I will tell you about the calculation also. Now come to the two words, hybridization and emasculation and bagging. Three words are there. Hybridization, to obtain proper result, two methods were used by Mendel: emasculation and bagging. In emasculation, we were removing the anther from the flower, and in bagging is the process of covering selected flowers by a bag made up of butter paper which protects cross pollination. Any doubt in this? जब क्लास 12th का प्रैक्टिकल देंगे, प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे, तो वहाँ पर भी इमेस्कुलेशन और बैगिंग की दो स्पॉटिंग रखी होती है. स्पॉटिंग तो याद होगा क्लास 11th में. स्पॉटिंग किसको बोलते हैं? व्हाट इज स्पॉटिंग? सर वो माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड चेक करते हैं हम लोग ना, उसे और तो कोई? स्पॉटिंग कहते और कुछ? सो उसको देख के आइडेंटिफाई करना है कि क्या है, हाँ, ठीक कैसा है. किसी भी चीज़ को देख के आइडेंटिफाई करना जिसमें अगर हमने कोई माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड भी रखी है तो स्लाइड को वी हैव टू सी एंड आइडेंटिफाई व्हाट स्लाइड इज इट. और देयर आर डिफरेंट स्पेसिमेंस. स्पेसिमेंस बहुत सारे देखा होगा लैब में रखे हुए हैं. तो इन क्लास 12th प्रैक्टिकल, emasculation and bagging is also kept as a spotting. What we do in this, we take a plant having a flower and we cover that flower with a butter paper or simply the polythene sheet. उससे तुम्हें क्या पहचानना है कि अगर हमने किसी फूल को बांध दिया है तो इट इज शोइंग बैगिंग. अब बैगिंग का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वट एवर यू आर नोइंग अबाउट बैगिंग यू हैव टू राइट देयर. And for emasculation what we do, we keep one flower in, just in side of flower we put one scissor. एक कैंची रख दिया, एक फूल रख दिया. तो अब ये नहीं करना है कि वहाँ लिखने लगे कि एक फूल रखा था लाल रंग का, उसके बगल में एक कैंची रखी थी. वहाँ पे ये नहीं लिखना है. वहाँ लिखना है कि फूल और कैंची, इट इज शोइंग व्हाट, emasculation. अब उसके बाद emasculation के बारे में लिखना है. पता चला लिखने लगे कि कैंची का जो हैंडल था वो ऑरेंज कलर का था और फूल बहुत सुंदर था, किसी को देने लेने का काम कर सकता है. तो ऐसा कुछ नहीं है. समझ में आया सोनू? चलिए अब आते हैं मेंडल लॉ पे. लॉ ऑफ डोमिनेंस. डोमिनेंस एंड रिसेसिव, टू वर्ड्स हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड. क्लियर था ये दो वर्ड? पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ते हैं, फिर इसमें कुछ बातें निकल के सामने आएंगी. Out of the two allele, one is able to express itself in the next generation. The allele which express itself is called dominant allele and which remains hidden is called as recessive allele. It is the same definition of class 10th. Maybe language is maybe little bit different, but the concept is same. Dominance and recessive. थोड़ा इसके लिए we have to see the board. थोड़ा ध्यान से देखेंगे. Let me adjust the camera. बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? ओके. आते हैं मेंडल लॉ को थोड़ा चेक करते हैं. First, he has taken what? A tall plant and dwarf plant. It is the same of class 10th.
For tall plant, he has used the abbreviation capital T, and for dwarf plant, he has used small t. ये जो abbreviation हम use कर रहे हैं capital और small, ये हम कुछ भी use कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि for height we have to use capital T. हम capital A और small a भी use कर सकते हैं, या tallness के लिए हम small t और capital के लिए dwarfness के लिए we can use capital T, but we use the abbreviation in such a way that our calculation should be easy. अपने calculation को आसान करने के लिए कि capital word stands for dominant, that's why we are using capital T as a dominance. अगर हम कुछ और use करते हैं, suppose in place of capital T and small t we are using capital A and small a, in this case what you have to do, before to start your experiment you have to write somewhere that we are using capital A abbreviation as a tall character and small a abbreviation as a dwarf character. Clear है इतना? Okay. Now see, what is this? These both are allele, है ना? During hybridization, out of these two alleles any one will come, and out of these two alleles any one will come. What will happen? क्या क्या possibilities हो सकती हैं? We are drawing. सर, हाँ सर गेमेट्स फॉर्मेशन के प्रोसेस में मियोसिस होता है ना? मुंह बंद रखो, अभी सबको कंफ्यूज करोगे फिर. प्लीज सर हाँ या ना बता दीजिए. हाँ, थैंक यू सर. this is parent generation. This is called F1 generation. F1 means first filial generation or the first generation. यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? This plant were tall, this were dwarf. If by crossing 4 plants were obtained, what is their height? Tall, sir. All are tall. Anybody is having any doubt up to this cross? Because it is the simplest cross. अगर ये cross नहीं समझ में आएगा तो आगे तो complex होता जाएगा. Simply what is happening? आकृति यहाँ वहाँ मत देखो, बोर्ड पे देखो. What is happening? We are taking one allele from one parent and second allele from second parent. दोनों parent से एक एक allele ले रहे हैं. The complete combination we are getting. Is it clear? This is called as first filial generation. During his experimentation, जब पहली बार मेंडल ने अपना experiment शुरू किया, तो he stopped his experiment at this step. And what he interpreted that if we will cross a tall and dwarf variety, the resultant will be what? Tall variety. ठीक है? उन्होंने एक बार अपने एक्सपेरिमेंटेशन को यहीं बंद कर दिया कि अगर हम छोटे और बड़े को क्रॉस करेंगे तो रिजल्टेंट बड़ा होगा, और इसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि कुछ जीन डोमिनेंट होते हैं, कुछ जीन रिसेसिव होते हैं. जो डोमिनेंट होगा वो दिखाई देने लगेगा. बट आफ्टर सम टाइम समथिंग केम इनटू हिज माइंड, कुछ खुराफात आई उनके दिमाग में, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो F1 जनरेशन में प्लांट्स हमें मिले, एक बार हम इनको आपस में क्रॉस कराते हैं. ठीक है? तो दोबारा से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया और F1 जनरेशन के किसी दो को ले लिया. सपोज करो कि इन दोनों को हमने लिया. तो व्हाट डिड ही फाउंड? कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t, स्मॉल t. ये समझ में आ रहा है सभी को? Yes. The 4 offsprings were obtained and this generation was called as F2 generation. Okay. What was the condition of their height? This plant was tall. This will be. What about this? Tall. 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 This one? Tall. Also tall. Tall. And this will be? Tall. एक चीज को ध्यान रखेंगे कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, चाहे कैपिटल टी आगे लिखा जाए या पीछे लिखा जाए, इफ कैपिटल टी इज प्रेजेंट
इट मीन्स कि इट विल प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पहले स्मॉल टी लिख दिया तो ये ड्वार्फ हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। मेंडल की जो डायरी है उसमें इन्होंने लिखा कि द ड्वार्फ प्लांट विच वाज ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन, दैट प्लांट हैज मोटिवेटेड मेंडल फॉर द फर्दर रिसर्च वर्क। समझ में आ रहा है कि F1 में उन्होंने एक चीज बता दी कि इफ वी आर क्रॉसिंग टॉल एंड ड्वार्फ, all plant will be tall, but if again we are crossing one tall and another tall plant, how a dwarf plant can be obtained? बड़े और छोटे को क्रॉस किया गया तो सभी बड़े मिले, जब बड़े और बड़े को क्रॉस किया गया तो एक छोटा कहां से मिल गया? ये सोचने वाली बात थी। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो कि जब पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये सोचा है कि जब मैंने बड़े और छोटे को क्रॉस किया तो सभी मुझे बड़े मिले, मतलब छोटा वाला गायब हो गया। लेकिन जब बड़े और बड़े को क्रॉस किया तो एक छोटा कहाँ से आ गया? छोटा तो आना नहीं चाहिए था। जब बड़े और छोटे को क्रॉस किए तो छोटा नहीं आया, तो बड़े और बड़े को क्रॉस किए तो छोटा कैसे आ गया? और यहाँ से इनके दिमाग में ये बात आई कि ऑल्दो the plants which were obtained in F1 generation were tall in height, but they must contain some gene of small height also. बात समझ में आ रही है? See board once again कि the plants which were obtained in F1 generation all were tall. When he crossed the plant of F1 generation, in F2 generation he get one dwarf plant. From this plant, something is struck in his mind that how by crossing tall and tall plant, dwarf plant is obtained. It means what? Ki although these plants were, the plants which were obtained in F1 generation were tall, but they are containing some particular genes or alleles which are responsible for dwarfness. Is it clear? कुछ बात समझ में आ रही है कि ये बड़े जरूर थे लेकिन इनके पास कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट था जो क्या कर रहा था, जो अगले जनरेशन को क्या बना दे रहा था? ड्वार्फ। एनी डाउट इज देयर? रश्मि, इट इज द सेम ऑफ क्लास 10th में यही पढ़ा है हमने। सर एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार मतलब सर जब हम फर्स्ट फैलियल जनरेशन को ये सेल्फ पॉलिनेटेड करा रहे हैं तो सर फिर तो दोनों प्रोसेस में सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है ना? हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स यहाँ क्या समझ रही हो? टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस पॉलिनेट करा रहे हैं। टॉलनेस, अगर हमने टॉल को मेल मान लिया और ड्वार्फनेस को फीमेल मान लिया, अभी आगे हमें फिर इसको पढ़ना है कि इन्होंने एक बार अपने एक्सपेरिमेंट को ऐसे भी किया कि एक बार इसके मेल पार्ट को, टॉलनेस के मेल पार्ट को हटाया, फिर एक्सपेरिमेंट करके चेक किया, सेम रिजल्ट आया। दूसरी बार ड्वार्फनेस के मेल पार्ट को हटाया, फिर एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट क्या आया? सेम आया। तो सेल्फ पॉलिनेट मतलब जो पॉलिनेशन हो रहा है ये जनरेशंस के बीच में ही हो रहा है, लेकिन एक प्लांट में नहीं हो रहा है। फॉर हाइब्रिडाइजेशन वी आर यूजिंग डिफरेंट प्लांट। एनी मोर डाउट इज देयर? हाँ, एक्सक्यूज मी सर। सर अगर हम F1 जनरेशन के बाद सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं तो दो प्लांट्स की क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना सर। सेल्फ पॉलिनेशन सिंगल करा रहे हैं सर, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ करा रहे हैं? F1 जनरेशन के बाद सेल्फ पॉलिनेशन ही ना हो रहा है सर। कहाँ सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है? यहाँ बीच में एक प्लांट ये हो गया, एक प्लांट ये हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा? सेल्फ पॉलिनेशन वर्ड वहां पे अगर कहीं है तो वो सिर्फ किस लिए है कि जो हम क्रॉस करा रहे हैं वो F1 जनरेशंस के ही ऑफस्प्रिंग में करा रहे हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट वी आर यूजिंग ओनली सिंगल प्लांट टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। वी आर यूजिंग टू डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है सर? सो कांट वी ऑब्टेन दिस फ्रॉम अ सिंगल प्लांट? नो। ओके सर, थैंक यू सर। हाउ वी कैन? बिकॉज इट इज कंटेनिंग ओनली सिंगल एलील। एक बार में एक प्लांट से एक ही एलील तो आएगा और एक कैरेक्टर में हमें दो एलील चाहिए। यस सर। ठीक है,
Any Thank you, more sir. doubt is there? अब see one more thing. What was given? After this experiment, he obtained some ratio. One ratio was. Should I remove it? यहाँ तक clear है ना? ऊपर का point Yes, मैं sir. remove कर रहा हूँ Yes. क्योंकि last वाले की फिर जरूरत है. Phenotypic ratio and phenotypic ratio and genotypic ratio. Mendel calculated. Phenotypic, what we have studied the meaning of this word. Phenotype means Physical appearance. Physical External appearance. So the plants which were obtained in F2 generation, out of the 4 plants, you can see that 3 plants are what? Tall. Physical appearance Tall. is they are tall. So phenotypic ratio 3:1 because 1 was dwarf. Clear? Now come to genotypic ratio. What is the arrangement of gene? Here you can see that one plant is purely homozygous, that is tall. These 2 plants are what? Heterozygous. Although they are tall, but Heterozygous. they are heterozygous. And the third one is also homozygous for dwarfness. So the genotypic ratio obtained was 1:2:2. Any doubt? No. No, sir. It is most commonly used. It was a very, अगर 10th का याद हो तो it was an important question for class 10th also. याद है? Yes, sir. 10th में भी बार बार ये पूछा जाता था phenotype और genotype ratio, and the same is for class 12th also. अब बोलिए, if anybody is having any doubt. सर सर जो ये लॉ है ये सिर्फ प्लांट के एप्लीकेबल है कि एनिमल पे भी? सब पे लॉ ऑफ जेनेटिक्स है ये. सर तो ये एनिमल में अगर देखा जाए तो अगर कोई मेल है कोई फीमेल है, मेल टॉल है और फीमेल ड्वार्फ है, तो उसका जो प्रोजेनी होगा वो तो ड्वार्फ भी हो सकता है. इसमें यहाँ पे जो ड्वार्फनेस होता है वो डोमिनेंट है. प्लांट में हम लोग ले रहे हैं कि टॉल जो है वो डोमिनेंट. मैंने तो पहले ही तुम्हें बताया ये संगत. सर मैं कुछ जवाब में बोलूं क्या इसके? हाँ बोलो. सर ये प्लांट्स में हमने प्योर ब्रीड लिया था उसका, और एनिमल्स में हमें प्योर ब्रीड नहीं मिलता. स्पेशली ह्यूमन बीइंग में हम प्योर ब्रीड ऑब्टेन कर ही नहीं सकते. उसमें इतने ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं कि वो सब कॉम्पैक्ट रहते हैं एक दूसरे. शायद यही रीजन एक होता है कि हम हाइब्रिड हैं अपने आप में, इसलिए हमसे जो जनरेशन आएगी वो कभी भी प्योर नहीं हो सकती, हाइब्रिड ही होगी. या फिर प्योर होगी भी तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. कुछ समझ में आ रहा है फरहान? थोड़ा इसको मैं और समझाता हूँ. हमने अगर याद हो हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि टू ऑब्टेन प्योर वैरायटी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हाइब्रिडाइज द प्लांट फॉर इनब्रीडिंग अप टू 4 to 6 जनरेशन. 4 से 6 जनरेशन हमें इनब्रीडिंग करनी पड़ेगी. अब तुम सोचो कि क्या ह्यूमन पे ये एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल है? अगर किसी साइंटिस्ट के देख रेख में जनरेशन्स की बात की जाने लगे तो हमारी एक जनरेशन खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे हम. तो अगर हम मर जा रहे हैं तो हमारे पैरेलली जो काम करेगा साइंटिस्ट वो भी तो मर जाएगा. तो हाउ ही विल बी एबल टू कैलकुलेट द 4 to 6 जनरेशन. बट फॉर दैट पर्पज ओनली अगर हम एनिमल्स का यूज करते हैं तो वी यूज दैट टाइप ऑफ एनिमल्स वी आर हैविंग शॉर्ट लाइफ साइकिल. लाइक many times we have repeated that in most of the experiment mouse, चूहों का यूज किया जा रहा है. क्यों? because in 1 year they are producing 3 to 4 generation. चूहों के एक साल में 3 से 4 बार बच्चे होते हैं. समझ में आ रहा है? इसीलिए चूहेदानी घर में लगाते परेशान है, लेकिन वो भागते नहीं है. कुछ बात समझ में आई कि the same laws are followed for animals also. हमारे में भी जो तुमने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने इसीलिए शुरू में बताया था कि टॉलनेस या ड्वार्फनेस, जरूरी नहीं है कि टॉलनेस हमेशा डोमिनेंट हो. समझ में आ रहा है? जैसे ये जो कैरेक्टर हमने लिया ड्वार्फ वाला, अगर एक प्लांट हमने ऐसा ले लिया, जैसे फिर से एक बार बोर्ड पे मैं दिखाता हूँ, या चलो वर्बली बताता हूँ. तो बोर्ड पे जाने में बार बार कैमरे को एडजस्ट करना पड़ता है. अगर हमने ड्वार्फनेस हमें यहाँ मिला, एक प्लांट ड्वार्फ मिला ना,
हमने इसके पैरेलली एक और एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर भी एक प्लांट हमें लास्ट में F2 में ड्वार्फ मिल गया। अब अगर हम फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के ड्वार्फ को और सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट को ड्वार्फ को आपस में क्रॉस कराते हैं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? सभी ड्वार्फ होंगे। सभी ड्वार्फ होंगे। यस सर। मीन्स व्हाट इज हैपनिंग देयर कि वहां पर जो ड्वार्फनेस थी वही क्या हो गई? डोमिनेंट। समझ में आ रही है बात? एनी डाउट इज देयर? मतलब जो भी कैरेक्टर्स डोमिनेंट और रेसेसिव होते हैं ये अपीयर होने के बाद हम बता सकते हैं कि विच कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड विच इज रेसेसिव। इज इट क्लियर? यस सर। एनी अदर? डोमिनेंट और डिपेंड किस पे करते हैं? फिर से बोलो अभिषेक। डोमिनेंट और रिसेसिव डिपेंड किस पर करते हैं सर? नेचर पे। यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू कि कौन से कैरेक्टर्स अपीयर होंगे। ये कैरेक्टर्स को डिसाइड अब तक कोई ऐसा प्रोसेस नहीं पता चला जिससे ये बताया जा सके कि यही कैरेक्टर अगले जनरेशन में अपीयर होगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करेंगे तो इस कर्म का फल जो है वो हमारी अगले जनरेशन को जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे यही लॉजिक है कि मे बी कि जो हमारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं नेचर इन्हीं कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करके हमारी अगले जनरेशन में ट्रांसफर करेगा। ऐसा देखा होगा, एक जनरल प्रैक्टिस है, इट इज नॉट 100% एप्लीकेबल, बट डॉक्टर का जो बेटा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर केस में डॉक्टर बनते हैं, हीरो हीरोइन के बच्चे जो हैं वो वही नचनिया बजनिया बनते हैं। ऐसे है, मास्टर है तो उसके बच्चे भाई उसको जब से बड़ा हुआ तब से देख रहा है कि हमारे पापा भी पढ़ा रहे हैं, मम्मी भी पढ़ा रही है, घर पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये सब देख के आता है। मेरे बच्चे का ये कि जब वो देखता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ कभी कभी घर से कुछ ट्यूशन वगैरह की क्लासेस, तो वो भी लेके बैठ जाता है अपनी कॉपी किताब कि मुझे भी पढ़ना है। तो उसके पैरेलली अगर कोई डॉक्टर होता तो वो फ़ोन पे दवा बताता तो उसके बच्चे के कान में हमेशा वो दवाओं के नाम जाते, तो उसका इंटरेस्ट उसके लिए डेवलप होता। तो ऐसा होता है। तो ये क्यों हो रहा है? अगर एक डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर क्यों बन रहा है? नेचर के वजह से, क्योंकि वो थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ी अब इसमें बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा।